Hello, class 7th. Today we are going to start our new chapter, conjunction. Now let's see what are the conjunctions. First of all, we will see the definition. A conjunction is a joining words. As you all know that conjunction is a joining word. So conjunction is a joining word and used to join words, phrases or sentences in a sentence. कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. ठीक है. टू मेक अनदर सेंटेंस, टू मेक अ सेंटेंस वी यूज कंजंक्शंस. ओके. कंजंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड लिंक वर्ड्स. कंजंक्शंस को हम लिंक वर्ड्स भी कहते हैं. रीड दीज सेंटेंसेस टू नो हाउ कंजंक्शंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस. सो कंजंक्शंस आपको क्लियर है कि कंजंक्शंस किसे कहते हैं. द वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस टुगेदर एंड मेक अनदर sentence is called a conjunction. So now let's see some of the examples of conjunctions, that where we use these conjunctions and how we use the conjunction in a sentence. So here are some of the examples. The first one is a hare and a tortoise ran a race. In this sentence, two two nouns are given over here. Okay, hare and tortoise ran a race. ठीक है. यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात की जा रही है. मीन्स एक हेयर है, एक टॉर्टोइज है. ठीक है. एंड इफ वी आर जॉइनिंग दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एंड के हेल्प से हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं. नोट द वर्ड एंड जॉइंस टू वर्ड्स हेयर एंड टॉर्टोइज. ये जो दो वर्ड्स हैं हेयर और टॉर्टोइज, एंड कंजंक्शन है और वो क्या कर रहा है, इन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. सो a hare and a tortoise can ran a race. Next one is the books are on the shelf and the dresses in the almirah belong to Rashmi. In this sentence and is being used, and का यूज किया गया है. The word and joins two phrases, the books on the shelf and the dresses in the almirah together. Okay. ये दोनों phrases को मीन्स ये जो दो phrases दिए हुए, the books on the shelf and the dresses in the almirah, इन दोनों को and क्या कर रहा है, join कर रहा है together, is joining it together. So here we are using and to join these two phrases. In the first one we have joined two words. The second one we have joined two phrases. And now let's see the next one. Tarika could not go to school because she woke up late. अब यहाँ पे क्या है, we are talking about the two sentences. हम दो sentences के बारे में बात कर रहे हैं. तारिका कुड नॉट गो टू स्कूल, दिस इज अ सेंटेंस. एक सेंटेंस है ये कि तारिका स्कूल नहीं जा पाई. ओके. एंड द अनदर सेंटेंस इज शी वोक अप लेट, वो देर से उठी. ओके. सो हियर वी आर यूजिंग because we are using to join these two sentences, and because is also a conjunction. So the word because joins two sentences. Tarika could not go to school बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज क्या कर रहा है, इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. तारिका कुड नॉट गो टू स्कूल और एंड शी वोक अप लेट. ओके. द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन आर व्हेन, बट, थ्रू, अनटिल और एंड सो. जो मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, व्हेन, बट, थ्रू, अनटिल और एंड सो. ये आपके क्या होते हैं, बहुत ही कॉमन कंजंक्शंस है. वी ऑलवेज यूज इन आवर लैंग्वेज ऑल्सो. ओके. So let's see the use of these conjunctions through the example. We can come to know about this. Read these sentences to understand the use of different conjunctions. Okay. The first one is he came to meet me when I was away. Okay. वो मुझसे मिलने आया जब मैं दूर था. तो जब ये आपका क्या है, when is your conjunction and it is joining these two sentences. He came to meet me when I was away. When is joining these two sentences together. Next is the boy is smart but lazy. अब यहाँ पे बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्मार्ट है लेकिन बट
क्या है, लेजी है. So these two words are being joined by but, and these two words are adjective. smart और lazy आपका क्या है, adjective है, और इन दोनों को जोड़ रहा है, conjunction जोड़ दे रहा है. ठीक है. So we have used here but. Okay, next is third one. The doctors went on a strike though they were promised to hike in the salary. Promised a hike in the salary. ठीक है. यहाँ पे हम दो का यूज कर रहे हैं. ठीक है, कि सैलरी में हाइक के लिए प्रॉमिस किया गया था डॉक्टर्स को, फिर भी वो स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वी शेल नॉट पार्डन यू अंटिल यू राइट एन अपोलॉजी. यहाँ पे हम आपकी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक आप अपोलोजाइज नहीं करते. ठीक है. अंटिल का यूज किया गया है. ठीक है, जब तक, अंटिल. नेक्स्ट, शुड आई राइट अ लेटर और टॉक टू हिम ऑन द फोन. मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या मैं उससे बात करूं और या फिर टॉक टू हिम ऑन द फोन, या फिर मैं उससे फोन पे बात करूं. सो दीज वर द वेरी कॉमन कंजंक्शंस एंड वी हैव यूज्ड दीज conjunctions in the sentences. Okay, now let's see the next topic. Our next topic is, oh, one example is also here. Sixth one, see, Rashmi was not invited, so she did not attend the marriage. Okay, Rashmi को invite नहीं किया था, that's why she has not attended the marriage. Here it is being told to us that, so Rashmi को invite नहीं किया गया था इसलिए, so she did not attend the marriage. Now next is, next step, where we use but and. But और and conjunction का use हम कहाँ पे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द यूज ऑफ एंड का यूज हम कहाँ करते हैं ये देखते हैं. कंजंक्शन एंड इज यूज टू लिंक टू सिमिलर आइडियाज. जब भी सिमिलर आइडियाज मीन्स होता है जो सामान्य सोच जो होती है. ठीक है, अगर कोई भी सिमिलर आइडिया है, एक जैसी आइडियाज हैं, तो उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं. लाइक हियर द एग्जांपल फर्स्ट यू कैन सी, द गार्डन इज बिग. गार्डन जो है वो क्या है, बड़ा है. एंड ब्यूटीफुल, और क्या है, सुंदर है. यहाँ पे दो सिमिलर एक जैसे आइडियाज बताए जा रहे हैं. मीन्स यहाँ पे गार्डन के बारे में ही बताया जा रहा है कि गार्डन क्या है, बड़ा है, और क्या है, ब्यूटीफुल है, मीन्स सुंदर भी है. सो हियर द टू सिमिलर आइडियाज आर बीइंग टोल्ड. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एंड इन दिस sentence to join these two words. Now the next is, conjunction but is used to link two opposite ideas or statements. कंजंक्शन बट का यूज हम कब करते हैं, जब दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, मीन्स विपरीत. ठीक है, तो हम बट का यूज करते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट है जिसमें अलग अलग बातें कही गई हैं. ठीक है, तो हम बट का यूज करते हैं. लाइक सी द एग्जाम्पल, द गार्डन इज बिग. गार्डन क्या है, बड़ा है. बट इट्स अनकीप नीड्स अटेंशन. लेकिन जो इसकी देख रेख होती है, ठीक है, उसे अटेंशन की ज़रूरत है. सो हियर द टू अपोजिट आइडियाज आर देयर. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड बट ओवर हियर इन दिस सेंटेंस. मीन्स गार्डन बड़ा तो है, लेकिन बट इट्स अनकीप नीड्स अटेंडेंस. लेकिन उसकी जो देख रेख है उसको अटेंशन की ज़रूरत है. सो हियर द टू opposite ideas are being told. Okay, now let's come on the, this was the use of but and let's see the next one. How conjunctions connect different parts of speech. conjunctions कैसे अलग अलग parts of speech जो होते हैं हमारे, उनको कैसे connect करता है. like first of all see the noun. We will see the noun. शिखर visited Canada, मयूर visited Canada. ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की बात बताई जा रही है कि शिखर ने भी कनाडा में विजिट किया और मयूर ने भी कनाडा में विजिट किया. सो यहाँ पे शिखर और मयूर दोनों क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है. बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन. शिखर एंड मयूर विजिटेड कनाडा. वी आर राइटिंग इट लाइक दिस. हियर कंजंक्शन एड लिंक्स टू प्रॉपर नाउन्स. यहाँ पे जो आपका कंजंक्शन एंड है वो क्या कर रहा है, जो दो प्रॉपर नाउन्स आपके दिए हुए हैं शिखर एंड मयूर, इन दोनों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है. ओके, so we can use the conjunction to join the two proper nouns also. Shikhar and Mayur visited Canada. No need to write two times visited Canada.
We can write it one time only and we can complete the sentence with the help of and. Next one is second one. Sarina is sincere. Sarina is honest. So, Sarina is the name of a girl and she is sincere. She is honest. So, while joining it, while making one sentence, we will join it with and, with the help of and here it is. सरीना इज सिंसियर, सरीना इज ऑनेस्ट. तो यहाँ पे सरीना की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो सिंसियर भी है और ऑनेस्ट भी है. तो इसको हम एक साथ राइट कर सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंड के साथ हम राइट कर सकते हैं लाइक सरीना इज सिंसियर एंड ऑनेस्ट. ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं आपके, जो सरीना की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, उसे हम एक साथ राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड. So Sarina is sincere and honest means here conjunction and links two adjectives sincere and honest. यहाँ पे जो conjunction and है वो क्या कर रहा है, दो adjectives को add कर रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है एक साथ, ठीक है, sincere और honest को. Now the next one is Pratul is Indian. I am Indian. प्रतुल क्या है, इंडियन है, मैं इंडियन हूँ. ओके तो इन दोनों सेंटेंसेस को एक करने के लिए व्हाट वी विल डू, प्रतुल एंड आई आर इंडियंस. Ideas are same, that's why we are using and in this sentence also. Okay, here conjunction and connects a proper noun with a pronoun. Pratul and I. यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजंक्शन एंड जो है आपका वो प्रॉपर नाउन प्रतुल जो है आपका उसको और प्रोनाउन को मीन्स आई को एक साथ कनेक्ट कर रहा है. ओके सो इन दिस वे वी कैन add the proper noun and pronoun together with the help of conjunction and. So this was all about the conjunction which connects how conjunction connects different parts of speech. Now let's see the next one. Our next point is conjunction so और because. ये तीनों जो conjunctions होते हैं उनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, let's see that. First one, conjunction so is used to express a purpose or a reason. conjunction so का यूज हम कोई भी पर्पस, ठीक है, कोई भी रीजन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, कोई वजह होती है, ठीक है. सो एग्जाम्पल, द रेन वॉज वेरी हैवी सो वी रिमेन्ड इनडोर्स. इन दिस सेंटेंस ये बताया जा रहा है कि जो बारिश थी वो बहुत तेज थी, दैट्स वाई सो वी रिमेन्ड इनडोर, इसलिए हम अंदर ही थे, घर में ही थे मीन्स अंदर ही थे. सो यहाँ पे सो का यूज किया गया है बिकॉज हियर यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि हम बारिश तेज थी इसलिए हम अंदर थे. ओके नेक्स्ट इज conjunction so is also used with the word that as compound conjunction. जो आपका conjunction so है वो कैसे और हम कैसे यूज कर सकते हैं उसे, with the word that. हम that के साथ भी conjunction that के साथ भी हम so को यूज कर सकते हैं एज अ compound conjunction. compound conjunction वो होते हैं जैसे कि दो conjunctions को हम राइट कर रहे हैं. आपने जैसा कि पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है कॉमा को रिमूव करके. सो यहाँ पे हम सो और दैट दोनों को यूज कर रहे हैं हियर एज अ कंपाउंड कंजंक्शन. ओके दोनों को साथ में यूज किया जा रहा है. लाइक नाउ सी द एग्जांपल, वी रिमेन्ड इनडोर्स सो दैट वी कुड अवॉइड द हैवी रेन. हम अंदर थे, ठीक है, हम अंदर ही रहे. सो दैट मीन्स इसलिए कि हम, सो मीन्स होता है इसलिए, दैट मीन्स इस की, ठीक है, मैं हम अंदर ही थे इसलिए कि वी कुड अवॉइड द हैवी रेन, हम हैवी रेन जो तेज बारिश हो रही है उसे अवॉइड कर सके, उससे बच सके, ठीक है. नेक्स्ट इज कंजंक्शन और का यूज हम कहाँ करते हैं, कंजंक्शन और इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज अ चॉइस और अल्टरनेटिव बिटवीन द टू. जब भी कोई चॉइस होती है, ठीक है, दो अल्टरनेटिव्स के बीच में, ठीक है, whenever we are making a choice, जब भी हम कोई चॉइस कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और का यूज करते हैं. लाइक सी द एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफी. क्या तुम एक मीन्स अ कप ऑफ टी लेना पसंद करोगे या फिर
अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस पूछी जा रही है, चॉइस पूछी जा रही है कि तुम्हें क्या चाहिए। ओके, सो हियर दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओवर हियर और का यूज हम कर रहे हैं बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर द चॉइस। Now let's come on the next. Second point is conjunction or is also used with the word either as a compound conjunction. Conjunction or को हम either word either के साथ भी use करते हैं as a compound conjunction. जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ that के साथ बताया कि that के साथ भी so को use करते हैं. Same in that way only we use or with the word either. Either के साथ भी हम इसे और को यूज करते हैं लाइक इन द एग्जाम्पल आइदर द बॉयज और द गर्ल्स विल अटेंड द लेक्चर। मीन्स या तो बॉयज और या तो गर्ल्स लेक्चर अटेंड कर सकती हैं। ओके, यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि या तो बॉयज या फिर गर्ल्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंपाउंड कंजंक्शन और एंड आइदर। इन दिस वे और भी होते हैं, मीन्स आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द लास्ट बिकॉज। बिकॉज को कहाँ पे यूज करते हैं, लेट्स सी। कंजंक्शन बिकॉज is used to join sentences when one sentence tell something and the other second sentence gives a reason or a cause for it. कंजंक्शन बिकॉज का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है, जबकि उसमें क्या होता है कि एक जो सेंटेंस है वो आपको कुछ बता रहा होता है एंड द सेकेंड सेंटेंस, और जो दूसरा सेंटेंस है आपका वो आपको रीजन दे रहा होता है। मीन्स इट गिव्स अ रीजन और अ कॉज, कोई वजह या फिर कोई रीजन बता रहा होता है, तो हम बिकॉज का यूज करते हैं। लाइक इन द एग्जाम्पल वी आर लेट बिकॉज द ट्रेन डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। हम लेट हैं, हम लेट हैं क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज द ट्रेन डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, जो ट्रेन है वो स्टेशन टाइम से नहीं पहुंची, इसलिए हम क्या हैं, लेट हैं। यहाँ पे आपको रीजन बताया जा रहा है कि हम लेट क्यों हैं, वाई वी आर लेट बिकॉज द ट्रेन डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। सो दिस इज अबाउट द बिकॉज। नेक्स्ट आपका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द थीफ वॉज एप्रीहेंडेड बिकॉज ही हैड अ नेकलेस। ओके, अब यहाँ पे थीफ के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक नेकलेस चोरी कर लिया है। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज बीइंग एप्रीहेंडेड। ठीक है, ही वाज एप्रीहेंडेड। ओके, सो दिस हियर आल्सो वी आर गेटिंग द रीजन, हमें वजह पता चल रही है, इसलिए हम बिकॉज का यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सो और एंड बिकॉज। सो का यूज हम करते हैं जब whenever we use so whenever we have to express a purpose or a reason, and we use it with the word that as a compound conjunction also। and the second or का use हम whenever we have any choice then we use the or, and we use or with either also, either के साथ भी use करते हैं as a compound conjunction। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज बिकॉज। बिकॉज का यूज हम करते हैं फॉर वन सेंटेंस, इफ देयर इज वन सेंटेंस विच टेल्स समथिंग, जो कि कुछ बताता है, एंड अदर सेंटेंस व्हेन इट टेल्स द रीजन और कॉज, देन वी यूज बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द conjunctions।